پھر سے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز۔ فیصل آباد کی پہچان، آواز ہمیشہ کے لیے خاموش۔ معروف گلوکار اسد عباس مدد کے لیے پکارتے پکارتے چل بسے۔ مرحوم گلوکار گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، آخری وقت میں جگر بھی کام چھوڑ گیا۔ قسم پرسی کے شکار گلوکار کی مدد کی اپیل کسی کام نہ آئی، علاج کی سہولیات سے محروم رہے اہل خانہ اور اہل علاقہ، غم سے نڈھال۔ میوزک انڈسٹری کا چمکتا دھمکتا ستارہ اسد عباس وفات پا گیا۔ گلوکار اسد عباس فیصل آباد سے ملکہ گاؤں ستیانہ بنگلہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق موسیقی گھرانے سے تھا۔ اسد عباس 8 سال کی عمر سے ہی گانے کے شوقین تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور پاکستان میں نام روشن کیا۔ اسد عباس اور مشہور گلوکار علی عباس بھائی تھے۔ دونوں نے مل کر پاکستانی میوزک انڈسٹری کو کئی ہٹ گانے دیے۔ اسد عباس نے سنگیت آئیکن ایوارڈ، کوک اسٹوڈیو اور مشہور ڈرامہ رقص بسمل کے OST کدی عامل سانول یاروے سے دنیا بھر میں نام کمایا۔ انہوں نے تمغہ امتیاز سمیت کئی ایوارڈز اپنے نام کیے۔ اسد عباس 2015 میں رشتہ ازواج سے منسلک ہوئے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ اسد عباس 2017 سے گردوں کی عارضے میں مبتلا ہوئے اور ڈائلیسس کروا رہے تھے۔ بیماری کی وجہ سے اسد عباس کا گھر بار سب بک گیا۔ اسد عباس وفات سے پہلے حکومت اور مداحوں سے مدد کی اپیل کرتے رہے، مگر کوئی مدد کو نہ آیا۔ پاکستان کی خوبصورت آواز 37 سال کی عمر میں خاموش ہو گئی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ گلوکار اسد عباس کا انتقال، سٹی 41 نے آواز اٹھائی مگر کسی کام نہ آئی۔ حکومت کو وعدے یاد دلائے، مخیر حضرات سے اپیل کی، مگر کوئی اسد عباس کا سہارا نہ بنا۔ اسد عباس کو حکومت سے تمغہ امتیاز تو ملا، علاج نہ مل سکا۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکار اسد عباس انتقال کر گئے۔ مرحوم کی رہائش گاہ ستیانہ بنگلہ میں سوگ کا عالم۔ باپ محمد طفیل، بھائی ظہیر عباس غم سے نڈھال۔ کہتے ہیں اسد عباس نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ کوک اسٹوڈیو، انڈین آئیڈل، ہر سطح پر اسد عباس نے موسیقی کے میدان میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ ظہیر عباس کا کہنا تھا، اسد عباس کو اپنا گردہ عطیہ کیا، بھائی پھر بھی جان بر نہ ہو سکا۔ لاکھوں روپے کا علاج کرایا، حکومت نے کوئی امداد نہیں کی۔ مخیر حضرات نے کچھ مدد کی مگر حکومتی امداد محض دعووں تک رہی۔ گھر ہے ابو جی، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ میری ماں دے قدموں میں دفنانا، اللہ کو جا کے میں پھر گلے کروں گا۔ میں کہتے چلا تو ابو بس دعا کرو، بس میں جا رہا ہوں۔ جوان بیٹے کی موت پر باپ کی آنکھوں میں آنسو کی برسات۔ اسد عباس کے والد محمد طفیل کہتے ہیں، اسد عباس گھر میں سب سے مختلف تھا، چھوٹی عمر میں ہی بڑے کام کیے، اپنے دکھ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم پہ جو بیت رہی ہے نا، ہم بتا نہیں سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آگے کوئی اسد کی طرح اپنی وقت سے پہلے موت نہ لے۔ میں آپ کے چینل کے ریفرنس پوری دنیا کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد پہ دیکھیں، نظر ڈالیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، وہ آج زبان پہ نہیں لاتے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے گلوکار اسد عباس کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کیمرامین محمد عثمان تاج کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ میں کسان سڑکوں پر نکل آئے۔ کسان اتحاد کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے میں ٹریکٹر ٹرالیوں پر سوار کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک۔ ڈی بلنگ اور 3 فیز میٹرز کی عدم دستیابی پر تحفظات کا اظہار۔ شوگر مل سے واجبات کی ادائیگی، کھاد کی بلیک مارکیٹنگ روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ جنگ میں کسان اتحاد کا احتجاجی مظاہرہ، چنیوٹ موڑ پر احتجاج میں ٹریکٹر ٹرالیوں پر سوار کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ احتجاج کی قیادت ضلعی چیئرمین حاجی نذیر کامہ اور ضلعی صدر واجد علی نول نے کی۔ کاشتکاروں نے ڈی بلنگ اور 3 فیز میٹرز کی عدم دستیابی پر تحفظات کا اظہار کیا۔ تو فیسکو کے ریلیٹڈ ہمارے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ کسانوں کو ہر ماہ اوور بلنگ کی جاتی ہے۔ کسان نے 2000 یونٹ صرف کیا ہے تو اسے 7-8 ہزار یونٹ کا بل دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری فیسکو اور سیکٹری پاور بجلی سے گزارش ہے کہ ان تمام مسائل پہ پین لے کر ان کا حل کیا جائے تاکہ کسان خوشحال ہو سکے۔ مظاہرین نے شوگر ملز کی جانب سے واجبات کی عدم ادائیگی، کھاد کی بلیک مارکیٹنگ اور دیگر مسائل بارے مطالبات پیش کیے۔ ہر بوری تے کم و بیش 1000 تو لائے کے 1200 تک کو کھاد ڈیلر منافع لینا، جس دی وجہ تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ کھاد اور ریڑھ دی ہڈی رکھے دیے کسان واسطے تا فصل ہونی۔ طالبہ ہمارا یہ ہے کہ ان کے ریٹ جو سرکاری طور پر ان سے 1 پیسہ زائد نہ لیں اور کھاد کی جو قلت ہے وہ نہ پیدا ہونے دے۔ کاشتکاروں نے مطالبات منظور نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ درآمدی پابندیاں اور مہنگائی کا طوفان، آٹو موبائل انڈسٹری بحران کا شکار، عوام کی گاڑی خریدنے کی سخت خط۔
एक माह में 5100 गाड़ियां कम फरोख्त हुई। दरामदी पाबंदियां और महंगाई की सुनामी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डुबो दिया। अवाम की गाड़ी खरीदने की सकत खत्म। एक माह में 5100 गाड़ियां कम फरोख्त हुई। रवां साल के 7 माह में गाड़ियों के फरोख्त में 69% कमी रिकॉर्ड की गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह में 1000 सीसी से कम वाली गाड़ियों की फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई। 1300 और जायद सीसी वाली गाड़ियों में 2% बेहतरी हुई। 1000 सीसी वाली गाड़ी 2%, 1000 से कम सीसी वाली 27% कम फरोख्त हुई। मजमूई साल के पहले 7 महीनों में 1300 और जायद सीसी वाली गाड़ियों की फरोख्त में 72% कमी हुई। 1000 से कम वाली 77% कमी वाक़या हुई। गाड़ियों की फरोख्त में कमी की वजह ऑटोमोबाइल दरामदी सामान की तरसील और मुनासिब रकम न होना करार दी गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई में इजाफे पे इजाफे, मुआवजे, पुराना गुजारा मुश्किल, महकमा रसोई गैस की डेली वेजेस की मुश्किलात कम न हो सकी। पंजाब और विफाक में डेली वेजेस मुलाजमीन की कम अज कम यौमिया उजरत 1231 रुपये मुकर्रर। SNGPL में अनस्किल्ड डेली वेजेस मुलाजमीन को 820 रुपये मजदूरी दी जा रही। महकमा सुई गैस के डेली वेजेस मुलाजमीन की मुश्किलात जूं के तूं हैं। दिहाड़ीदार मुलाजमीन को गुज़िश्ता साल के मुताबिक ही मुआवजा दिया जा रहा है। पंजाब और वफाक में डेली वेजेस मुलाजमीन की कम अज कम यौमिया उजरत 1231 रुपए है, जबकि स्किल्ड लेबर को 1800 रुपए से ज्यादा यौमिया तनख्वाह मिलती है। SNGPL में डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन को यौमिया मजदूरी 820 रुपए से लेकर 965 रुपए तक दी जा रही है। डेली वेजेस मुलाजमीन कम मुआवजे पर ही काम करने पर मजबूर है। SNGPL हकाम का कहना था कि उजरत में इजाफे का नोटिफिकेशन हेडक्वार्टर से जारी होगा। SNGPL हकाम का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफे के लिए हेडक्वार्टर को खत लिख दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने पर तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल 2 के रेडियोलॉजी शोबा में फिल्में नायाब। इमरजेंसी वार्ड में वाक़या एक्सरे मशीन बंद हो गई। मरीज एक्सरे कराने के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का सफर करने पर मजबूर। अलाइड अस्पताल 2 के रेडियोलॉजी शोबे में फिल्मों की किल्लत। इमरजेंसी वार्ड में वाक़या एक्सरे मशीन बंद हो गई। सीरियस हालत समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीज एक्सरे कराने के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अस्पताल में मौजूद एक शहरी ने बताया कि इसका बेटा इमरजेंसी वार्ड में दाखिल है। एक्सरे कराने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में एक्सरे वाला कमरा बंद है। थोड़ा मसला वो बच्चे को बना, एक्सीडेंट हुआ उसका रात, तो उसकी वजह से ना मसला गोडे को बन गया, उसके रगड़े रूड़े लगी हैं इसके। बाहर से और सामने से। हाँ जी, इसका कोई मैंने पता, उन्होंने जब भी भेजते हैं बाहर भेज देते हैं, बाहर चले जाओ। AMS एडमिन डॉक्टर मोहम्मद अली के मुताबिक फिल्में ना होने के सबब एक्सरे मशीन बंद है। इनका कहना था कि फिल्में मिलते ही एक्सरे मशीन फाल कर दी जाएगी। इमरजेंसी वार्ड में तकरीबन रोजाना 100 से ज्यादा मरीज एक्सरे की सहूलत से इस्तेफादा करते हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताया जहाँ के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। हेडमराला पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए चनाब फिर बिफरने लगा। महकमा इनहार के अदादोशुमार के मुताबिक हेडमराला पर पानी की सतह 95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। हेडमराला से सैलाबी रेला आइंदा 3 रोज में झंग पहुंचेगा। लगभग 70,000 का रेला त्रिमू बैराज पहुंचेगा। चनाब में तुगयानी से नशीबी इलाके दोबारा डूबने का खदशा है। त्रिमू बैराज पर पानी की सतह 63,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नशीबी इलाकों में जमा पानी से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सड़कें खंडर, अक्सर मुकामात पर ताहाल कई फुट पानी मौजूद है। सैलाबी पानी में डूबी फसलें गलने सड़ने लगी। चारा बहुत खराब होया जी, सब्जियां कद्दू मिर्चियां सब तबाह हो गई, बिल्कुल फसल फारिग हो गई है जी। और जनाब हूँ पानी की कोई सतह घटती पई है जी। और जनाब हूँ कोई बंदे आंदे जाते पैन कोई रस्ता बनता पे, लेकिन जितों पानी गुजरता है ना जी, उस जगह तो जनाब सड़क टुट जांदियां जी। कोई बनाने वाला कोई सूरत हाल वेखने वाला होंदा ही कोई नहीं, बाहर पुछदा ही कोई नहीं। किसानों की जमा पूंजी लुट गई। नशीबी इलाकों में ताफून और वबाई इमराज से मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। शेड्यूल रेलवे स्टेशन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इकदामात। निजी तंजीम और इंतजामिया के ताउन से रेलवे स्टेशन रंगो रोगन दीवारों पर खूबसूरत तस्वीर बनाएंगे। चिन्योड रेलवे स्टेशन की किस्मत जाग उठी। खूबसूरती बढ़ाने के लिए रंग रोगन किया गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सफाई सुथराई समेत छतों, दफातर, दीवारों पर रंग रोगन हुआ। मुसव्विरों ने भी अपना कमाल दिखाया। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीर बनाकर रेलवे स्टेशन को 4 चांद लगा दिए गए। रेलवे स्टेशन की खूबसूरती का काम निजी इदारे और जिले इंतजामिया के इश्तराक से हुआ। मंसूबे में रंग रोगन, मुरम्मत और शजरकारी मुहिम शामिल थी। ये जिले इंतजामिया और शऊर ऑर्गेनाइजेशन की
मुश्तरका तावन से कुछ रेलवे इंतजामिया की तरफ से काम किया गया है, जिसमें स्टेशन की रिनोवेशन की गई है, पेंट किया गया है, ग्रीनरी की गई है और पौधे लगाए गए हैं, प्लेटफार्म की मुरम्मत की गई है, सेकंड लाइटिंग का इंतजाम किया गया है, जो कि एक अच्छी काविश है। महकमे रेलवे को चाहिए कि वो स्टेशनों को खूबसूरत बनाने समेत दीगर सफरी सहूलियात के लिए भी इकदाम करें ताकि मुसाफिरों को आसानी हो सके। कैमरामैन अली जेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। महकमा एक्साइज नाद हिंदगान से रिकवरी में नाकाम। फैसलाबाद में 3,346 डिफॉल्टर से 1 अरब 40 करोड़ रुपए वसूल न किए जा सके। महकमा एक्साइज की स्पेशल रिपोर्ट ने मुलाजमीन की नाअहली से पर्दा उठा दिया। फैसलाबाद में 3,346 डिफॉल्टर से 1 अरब 40 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। नाद हिंदगान को वाजिबात की अदम अदायगी पर हर महीने टैक्स का 1% के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की रिकवरी न होने से सरकार के 1 अरब 40 करोड़ रुपए डिफॉल्टर्स के पास फंसे हुए हैं। एक्साइज हेडक्वार्टर ने रीजनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन को रिकवरी कराने और मामले की मजीद तहकीकात की हिदायत की है। फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट ने 6 मुल्जिमान को मजबूरी तौर पर 2,58,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बुखारी ने सजा का हुक्म सुनाया। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के चलान अदालत पेश किए गए। फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट ने 6 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 2,58,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बुखारी ने सजा का हुक्म सुनाया। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के चलान अदालत पेश किया गया। फैसलाबाद में सिविल जजेस की छुट्टियां 31 अगस्त तक जारी रहेंगी। ड्यूटी जजेस 5वें ग्रुप ने जिम्मेदारियां संभाल ली। 4 सिविल जजेस ने बतौर ड्यूटी जजेस जिम्मेदारियां अंजाम दी। सिविल जज आदिल रियाज मार्किंग और दफा 30 के तमाम क्रिमिनल केसेस देखेंगे। सिविल जज गुलजेम असलम क्लास 2 और 3 का सिविल वर्क निपटाएंगी। सिविल जज सोबिया बशीर ग्रुप ए में शामिल। पुलिस स्टेशन की क्रिमिनल अमूर की ड्यूटी जज होंगी। सिविल जज साजिद बिलाल पुलिस स्टेशन ग्रुप बी और सी के अमूर देखेंगे। ड्यूटी जजेस इमरजेंसी नोयत के केसेस निपटाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फैसलाबाद में एटीएम मशीन इंस्टॉल न की जा सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर में तमाम सेशन जजेस को सेशन कोर्ट में एटीएम मशीन इंस्टॉल करने के अहकामात जारी किए। ताहम 1 साल बाद भी अमल दरामद नहीं हो सका। एटीएम मशीन न होने से साइलिन को मुश्किलात दरपेश हैं। वकला कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के करीब कोई बैंक भी नहीं। रजिस्ट्री केसेस में अक्सर भारी रकम बैंक जमा करानी पड़ती है। बैंक करीब न होने रास्ते में रकम छिन जाने का खतरा होता है। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन समनाबाद फैसलाबाद में स्किल बूट कैंप की अख्तितामी तकरीब। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, डायरेक्टर टेफ्टा आबिद हुसैन, वाइस प्रिंसिपल शाजिया खादिम, इंस्ट्रक्टर सादिया कंवल और दीगर की शिरकत। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन समनाबाद फैसलाबाद में स्किल बोट कैंप की अख्तितामी तकरीब मुनाकिद हुई। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने खसूसी शिरकत की और रवायती तालीम के साथ टेक्निकल एजुकेशन को वक्त की ज़रूरत करार दिया। DC अली अनान कमर ने डायरेक्टर टेफ्टा आबिद हुसैन के हमरा 2 माह के टेक्निकल कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबात में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। जश्न आज़ादी तकरीबात जारी। चिनाब कॉलेज ग्राउंड में जिला इंतजामिया की जानिब से पुरवकार तकरीब। कॉलेज ग्राउंड में जश्न आज़ादी के सिलसिला में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, DPO अब्दुल्ला अहमद, वाइस चेयरमैन चिन्योट एजुकेशनल ट्रस्ट चौधरी मसूद इकबाल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सदर बार मुनीर जफर, सेक्रेटरी बार शाहिद यकूब, सदर ताजरान जमील फहरी, सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद बतौर मेहमान गरामी शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ अंसारी, ADCG तलहा सईद, असिस्टेंट कमिश्नर अशफाक अहमद, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मुनव्वर बुहारी, CEO एजुकेशन डॉक्टर जफर इकबाल, CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक, चीफ ऑफिसर्स माहर वकास हरल, मलिक जफर खोकर समेत तलबा और फैमिलीज ने शिरकत की। चिन्योट एजुकेशनल ट्रस्ट ने जिला में नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा में गोल्ड मेडल्स और कैश इनामात तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना था कि आइंदा बोर्ड में टॉप करने वाले तालिब इल्म को 5 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। मेरे मुल्क की जो भागदौड़ है इंशाल्लाह इनके हाथों में होगी। एंड हियर आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल नोट कि some 23-24 years ago I was also invited to a similar ceremony where I was conferred an award for securing first position in the district. मुझे बिल्कुल आज बच्चों को देख के अपना ज़माना याद आया तालिब इल्मी का। तकरीब में गुलकार अवैस नेकोकारा ने भी अपने फन का मुजाहरा पेश किया। तकरीब में नुमाया पोजीशंस लेने में किरदार अदा करने वाले असातिज़ा को भी सर्टिफिकेट्स और अवार्ड से नवाजा गया। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के फाइनल प्रोजेक्ट की नुमाइश तलबा ने शादी ब्याह से लेकर मॉडर्न मलबूसात तक मुख्तलिफ वैराइटीज़ पर शानदार काम पेश किया। कमिश्नर फैसलाबाद सदर सईद ने
रेक्टर NTU डॉक्टर तनवीर और डीन डॉक्टर जफर जावेद के हमरा नुमाइश का दौरा किया। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने तलबा के काम को पसंद करते हुए खूब दाद दी। रेक्टर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी डॉक्टर तनवीर और डीन डॉक्टर जफर जावेद ने भी काम का मुआयना किया। तलबा ने बच्चों के यूनिफॉर्म, खवातीन और मर्दों की नेचर को मौजू बनाते हुए भी काम पेश किया। फैशन डिजाइन के तलबा ने मलबूसात की डिजाइनिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर की मदद से 3D कैटवॉक के प्रोजेक्ट्स भी पेश किए, जिससे फैशन इंडस्ट्री में मॉडल्स और कैटवॉक पर आने वाले भारी अखराजात कम होंगे। और इसके साथ से न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहे City 41।